Then first of all, we read the passage. Gifts or presents are synonyms for each other as words, but if we do deep into their connotative meaning, they differ from each other. The word gift seems to be more frequently used than present. Both the words can be used as noun as well as verb, though they can be used as other parts of speech also. For example, gift, pack, gift card, gift box, etc. Here we cannot see present backpack, present card, present box, etc. Similarly, we usually say his talent is God gifted or he or she is gifted child. So gifts can be talents also. They are abstract while presents are more concrete, as in a sentence, a gifted child delivered a speech and got a number of presents from the people. It seems that giving a gift or a present in a proper way to congratulate someone. There is hardly anybody who doesn't like gifts. Whatever the occasion is, gifts are exchanged frequently. Nowadays, there is a fashion of written gifts also. When somebody gives us gifts, we feel obliged and sometimes we have to work under pressure in return for the gift that we have received or promised by someone. This was the reason Dr. APJ Abdul Kalam never took a gift from anybody. He really set an example with such habits and his uncountable skills. So in this passage we come to know about gifts or presents and their values at present times. So there is a difference between gift and presents. Both are used as verb and noun. In this passage we come to know the example Dr. APJ अब्दुल कलाम. उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया कि उन्होंने कभी भी किसी से गिफ्ट नहीं लिए. ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वर्ड इज़ मोर फ्रीक्वेंट इन यूज़. सो गिफ्ट है. ओके. आफ्टर दैट what is more concrete. Presents. What is considered a proper way to congratulate someone. Giving a gift. What is the fashion nowadays. Giving a return gift. Which example did Dr. APJ Abdul Kalam set. Never taking a gift. So here is the next passage. Earth is the only planet where life is possible. Though many people say that there are hundreds of Earths in the universe, but there is no solid proof yet. Some essential substances like air, water, and land support life on Earth. About 70% of the Earth is covered by water, and rest of it is covered by land. Similar to other planets, Earth also moves around the sun in its fixed path. It takes 364 days and 6 hours to complete its round around the sun. While taking a round around the sun, the earth also rotates on its own axis. It completes its round on its axis in 24 hours, which we call a solar day. When it is day time in our area, there is night time in the area opposite to us. So with the rotation of Earth on its own axis, we experience day and night with human beings on Earth. There are millions of other creatures on Earth, so it is our prime duty to save our lovely planet Earth from every type of wrong practice. If we save Earth, we shall save our life only. So in this passage we come to know about the Earth. Earth is our only planet where life is possible. ठीक है. तो इस पैसेज में क्या बताया है कि वैसे तो ये कहा जाता है कि बहुत सारी यूनिवर्स में बहुत सारी अर्थ्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ अर्थ इन द यूनिवर्स, बट इसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है. ठीक है.
ये जो एसेंशियल सब्सटेंसेस हैं लाइक एयर, वाटर एंड लैंड, ये जो हैं ये सभी कहाँ पर मिलती हैं? हमें अर्थ पे मिलती हैं। और अर्थ का क्या है, 70% जो एरिया है वो वाटर से कवर है, और रेस्ट यानी किसी भी चीज़ को हम 100% से काउंट करते हैं तो रेस्ट कितना हुआ? 30%। 30% क्या है? लैंड है। अब इसने बताया है कि जो अर्थ है वो भी अदर प्लैनेट्स की तरह सन के चारों ओर मूव करती है, ठीक है, अपने एक फिक्स्ड पाथ में, ठीक है। और इट टेक्स 364 डेज एंड 6 आवर्स टू कंप्लीट इट्स राउंड अराउंड द सन। और सन के चारों ओर घूमने में वो कितना टाइम लेती है? 364 डेज और 6 आवर्स, ठीक है। वाइल टेकिंग इट्स राउंड अराउंड द सन द अर्थ ऑल्सो, ये क्या बताया है? इसमें बताया है कि जैसे सन के चारों ओर चक्कर तो लगाती है, उसके साथ साथ अपने अक्ष पर भी ऑल्सो रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, अपने अक्ष पर भी पृथ्वी क्या करती है? चक्कर लगाती है, ठीक है। और वो कितने टाइम में कंप्लीट कर लेती है? वो 24 आवर्स में कंप्लीट कर लेती है। और जब इसमें बताया गया है कि जब हमें क्या है, व्हेन इट इज़ डे टाइम इन आवर एरिया, जब हमारे एरिया में डे होता है, दिन होता है, तो दूसरे एरिया में रात होती है जो हमसे अपोजिट है। सो विद द रोटेशन, किसकी वजह से होता है ये? जब अर्थ अपने ऑन एक्सिस पे अपने अक्ष पे घूमती है तो उसकी वजह से दिन और रात बनते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है वी एक्सपीरियंस डे एंड नाइट विद ह्यूमन बींग्स ऑन अर्थ, ठीक है। अब करोड़ों मिलियंस ऑफ क्रिएचर्स के साथ जो कि अर्थ पर हैं, हम दिन और रात का एक्सपीरियंस करते हैं। सो इट इज़ आवर प्राइम ड्यूटी, तो इसलिए हमारा सबसे पहला और ज़रूरी कर्तव्य ये है कि हम अपने लवली प्लैनेट जो कि कौन है? अर्थ, उसको बचाएं, ठीक है, एवरी टाइप ऑफ रॉन्ग प्रैक्टिस से। इफ़ वी सेव अर्थ वी शैल सेव आवर लाइफ ओनली, ठीक है। अगर हम अर्थ को बचा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? अपनी लाइफ को बचा रहे हैं। So questions are here. First question is, life is possible on earth only because of air, water, land, all of them. Then answer is all of them. How much of the earth is covered by land? मोस्टली स्टूडेंट्स ने इसका आंसर 70% दे रखा है, बिना ही देखे बिना सोचे, ठीक है। बट आंसर इज 30% बिकॉज इसमें हमसे पूछा है लैंड, इट्स लैंड नॉट वाटर। How much time does the earth take a complete around the sun? 364 into 1/4 days, क्योंकि इसमें हमने देखा है कि इसने बताया है 364 डेज एंड 6 आवर्स, ये लेता है टाइम कंप्लीट होने में। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24, ठीक है। 1 डे तो 1/24 डेज करेंगे तो 4th पार्ट कितना हो गया उसका? 6 आवर्स, ठीक है, जिसको हमने 1/4 बोला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर डेज एंड नाइट्स फॉर्म्ड, कैसे बनती हैं? व्हेन द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, जब अर्थ क्या करती है? अपने अक्ष पर घूमती है, रोटेट करती है, तो उससे दिन और रात बनते हैं। व्हाट इज़ आवर प्राइम ड्यूटी, हमारी प्राइम ड्यूटी क्या है? टू सेव द अर्थ, हमारी प्राइम ड्यूटी है अर्थ को सेव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रामर पोर्शन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें हमसे वर्ब पूछ रखी है, मीन्स टेंस। टुमारो इट विल बी mere difficult to convince the employer for releasing the salary, I am sure. Okay, will be. For 3 years I have been serving our country in all respects. I have been serving, क्योंकि इसमें क्या बताया गया है? मैं कर रहा हूँ पिछले 3 सालों से, यानी कुछ काम कंप्लीट हो गया और कुछ अभी भी चला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इज anybody who dash to take part in the function to be held in next month should give names to the coordinator. Anybody who wants, ये नियर फ्यूचर की बात हो रही है। अब बच्चों ने क्या कर लिया है? नेक्स्ट को देखकर इसमें गलत भर दिया है वर्ब, इसमें आएगा वांट्स, क्योंकि एनीबडी के साथ हमेशा ही हम क्या लगाते हैं? सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, जो कि हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होती है, दैट इज़ वांट्स। Fill in the blanks with the help of suitable determinants given below each sentences. A cup of tea refreshes
us nicely early in the morning. There are many people. There are many people who never take care of plants or trees. They only want flowers, fruits, wood, and shade from them. Next question is, he is the honest boy who returned teacher's purse found outside the school. The नेक्स्ट में हमने फिल करने हैं कंजंक्शंस. ठीक है. फर्स्ट इज डिड यू नो दैट. दैट इज हियर. Parrots are such birds which are liked by everybody. Next is prepositions. Students are suggested not to mark any answer with two options in your answer sheets. All the students must sit inside the classroom for at least 2 hours as it is raining. So, inside. Next portion is literature textbooks. So, read the following passage and answer the questions that follow from the options given below the questions. Somehow, I managed to stretch canvas and secure waterproof hedge covers across the gaping holes. अब आपसे पूछा गया है these lines from which chapter have these lines been taken. ये जो हमारी लाइंस दे रखी हैं ये किस चैप्टर से ली गई हैं. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके बुक में से पैसेज आया हुआ है. ठीक है. कौन सा चैप्टर है जिसमें से लाइंस ली गई हैं. सो आंसर इज़ वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर. ठीक है. ये वाला चैप्टर है जिसमें से लाइंस ली गई हैं. सेकेंड क्वेश्चन इज़ हु इज़ और आर द ऑथर्स ऑफ दीज लाइन्स. तो कौन है. गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट. हु डिड ही मैनेज टू डू. टू स्ट्रेच कैनवास. कैनवास को स्ट्रेच कर रहे हैं वो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट प्रॉब्लम अकर्ड विद द इलेक्ट्रिक पंप. इलेक्ट्रिक पंप की क्या प्रॉब्लम हुई थी. देन आंसर इज दे वर शॉर्ट सर्किटेड. हाउ डिड द हैंड पम्प्स स्टार्ट टू ब्लॉक. आंसर इज ब्लॉक्ड विद डेब्रिज. नेक्स्ट पैराग्राफ है नो सर आई एम नॉट informed the other day he made one of his classical jokes. Of course, nobody laughed because nobody understood it, myself included. अब ये लाइन भी आपकी बुक में से ही ली गई हैं. From which chapter have these lines been taken? Okay, the Browning version. The chapter is the Browning version. Who is the writer of these lines? Terence Rattigan. Next question is who is I in the passage. I in the passage tableau. What is the meaning of the form in the passage. Class. Who is the teacher in the passage referred as Sir. Crocker Harris. Next is read the following stanza and answer the questions that flow from the options given below the questions. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera a sweet face. My mother's that was before I was born, and the sea which appears to have changed less washed their terribly transient feet. So questions are ये आपकी बुक में से पोएम ली गई है बेटा. आपने ये बताना है कि किस पोएम की लाइंस हैं एंड हु इज़ द पोएट. और आगे क्वेश्चंस देखते हैं. नेम ऑफ द पोएम इज़ अ फोटोग्राफ. नेम ऑफ द पोएट ऑफ दीज लाइंस शिर्ले टॉलसन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु वॉज और वर गोइंग टू स्माइल थ्रू देयर हेयर. डॉली, बेटी, poet's mother, all of them. Then all of them. What has changed less. C. What was the poet looking at. The poet looking at photograph. Next poem is and who art thou.
said I to the soft falling shower. So questions are, what is the name of the poem of the above lines? The Voice of the Rain. What is the name of the poet of these lines? Walt Whitman. Who is I in the above stanza in third and fourth lines? Poet. Who does thou refer to in the stanza? Rain. Where from does the shower rise according to the above stanza? Both A and C. Out of the land or out of bottomless sea. So, answer the following questions from the options given below, any 5. These are here another optional type questions or MCQs. First question is, in the village the writer's school was attached to. राइटर का स्कूल किससे अटैच था? अ टेम्पल. द नेम ऑफ द आइलैंड वेयर द नरेटर गॉर्डन कुक एंड हिज फैमिली लैंडेड वॉज. एम्स्टरडम. वेयर वॉज किंग टट फ्रॉम इजिप्ट. वट वॉज द नेम ऑफ द ब्लैकस्मिथ इन द स्टोरी लैंडस्केप ऑफ द सोल. क्विंटन मेसी. What was the world population in 1800 as is given in chapter The Ailing Planet? 1 billion. Taplo is a student. Next questions are, Murad brought a beautiful white horse. Murad का कैसा घोड़ा था? White horse. After the war, the narrator comes back to her native place in Holland. Who is the writer of the story Ranga's Marriage? Mest Venkatesh Iyengar. Next is, who was Mr. Brown? History teacher. Christine was Dr. Andrews' girlfriend. What is the name of Mrs. Pearson's son? That is Cyril. उसके बाद आपको राइटिंग स्किल्स है बेटा. ये आपने लिखना है, यू आर मिस्टर रुपेश और मिस रूपा लिविंग एट 79 आहिर कॉलोनी जयपुर. यू लॉस्ट योर ऑफिस फाइल वाइल ट्रेवलिंग बाय मेट्रो. राइट ए नोटिस टू बी पब्लिश्ड इन द लॉस्ट एंड फाउंड कॉलम ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर. इसमें आपने एक नोटिस लिखना है, नोटिस, ठीक है, जिसमें आपने एड्रेस क्या देना है, आप कौन हो. अगर आप लड़के हो तो रुपेश हो और लड़की हो तो रूपा हो, और ये आपको एड्रेस दिया हुआ है. और किसी भी न्यूज़पेपर के कॉलम में आपको ये न्यूज़ छपवानी है, ठीक है, वहाँ पे आपने पब्लिश करवानी है. तो आपको यहाँ पे नोटिस के रूल्स जो हैं फॉर्मेट के, वो आपके माइंड में होने चाहिए. और यहाँ पे अपने नाम की जगह रुपेश और रूपा होगा और ये एड्रेस होगा, ठीक है. तो ये आपको इस तरह से लिखना है. और में क्या है, यू आर रिशु द हेड बॉय और गर्ल of your school. You had a meeting with principal and senior teachers. Write a notice for your school notice board informing the students about meeting and COVID vaccination to be given to the students, developing necessary details. ये भी आपने नोटिस लिखना है, ठीक है. और इसमें क्या करना है आपने, आप कौन हो, हेड बॉय हो और हेड गर्ल, ठीक है, रिशु. और आपने प्रिंसिपल और सीनियर टीचर से मीटिंग रखी हुई है, जिसमें आपने नोटिस बोर्ड पे ये नोटिस लगाना है कि वैक्सीनेशन, कोविड वैक्सीनेशन के बारे में, ठीक है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन एंड राइट अ मैसेज. ये आपने कन्वर्सेशन पढ़नी है, उसके बाद आपको देखना है कि इसमें क्या मैसेज दिया गया है, मैसेज क्या दिया गया है. और मैसेज का जो फॉर्मेट होता है ना बेटा, वही आपको इसमें फॉलो करना है, मैसेज का फॉर्मेट, ठीक है. उसमें क्या होता है, सबसे पहले तो क्या है, इट शुड बी आउटलाइन होनी चाहिए. उसके साथ लेफ़्ट हैंड साइड में हमें क्या करना है, उसकी बॉडी कैसे लिखनी है, ये सारी बातें हमें इन दोनों में ध्यान रखनी है. और उसके बाद हमें मैसेज क्रिएट करना है उसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हर टू चेंज योर सेक्शन गिविंग सम रीजंस। राइट योर सेल्फ एज अमित और अनीता ऑफ क्लास +1, ठीक है, क्लास 11th। ये अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लेटर लिखना है, लेटर लिखना है। और इस लेटर में आपको क्या करना है, रिक्वेस्ट करनी है उनसे कि वो आपका सेक्शन जो है वो चेंज कर दें। उसके साथ क्या होना चाहिए, आपके सूटेबल रीजंस होने चाहिए। और आपको अपने नाम की जगह क्या लिखना है, अगर आप लड़के हो तो अमित लिखना है और लड़की है तो अनीता लिखना है। और में क्या है, राइट एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एन अकाउंटेंट इन सनराइज एंटरप्राइजेज। राइट टू द मैनेजर इन नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग। ये एप्लीकेशन लिखनी है आपको, ये अकाउंटेंट इन सनराइज एंटरप्राइजेज को, उसके मैनेजर को, ठीक है, ये एप्लीकेशन लिखनी है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट इज एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और हेल्थ इज वेल्थ। ये दोनों ही पैराग्राफ हैं बेटा, इनमें से आपको जो अच्छे से आता है उनमें से लिखो, एक लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट अ करेक्टर स्केच ऑफ द ग्रैंड मदर द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी रिटन बाई खुशवंत सिंह, उसमें जो उसकी दादी है उसका करेक्टर स्केच आपको लिखना है। और क्या है, हाउ आर द अर्थ्स प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स बीइंग डिप्लीटेड। ठीक है, ये आपको बताना है कि अर्थ के जो प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं वो डिप्लीट कैसे हो रहे हैं, वो बताना है आपको। आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स ईच। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई वाज द ऑथर डिसअपॉइंटेड विद डायरेक्शन। नेक्स्ट इज, what happened when Teplo laughed at the joke told by his master. Next is, how did the wave attack affect the wave walker. Question number 14. First is, write the central idea of the poem a photograph. Write in brief the summary of the poem The Lebanon Top. What does the poet say about his childhood in the poem Childhood? Next is, why did the narrator of the story want to forget the address? Or, I have done something, oh God, I have done something real at last. Why does Andrew say this? What does it means? इसका क्या मतलब था, ये आपको बताना है। और हमारा क्वेश्चन है लास्ट, दैट इज़ 16 क्वेश्चंस। हाउ डज मिसिज फिट्जराल्ड एडवाइज मिसिज पियर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वर रंगाज व्यू अबाउट मैरिज। नेक्स्ट इज, राइट इन ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ अंकल खोसरोव। तो ये आपका HBSC का क्वेश्चन पेपर है बेटा, क्लास +1 का। अब की बार कुछ पैटर्न इन्होंने चेंज किया है और इससे बच्चों का फ़ायदा ही होगा, ठीक है। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाया है, इससे अगर किसी एक बच्चे को भी फ़ायदा हुआ है तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। सो थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना और लाइक का बटन प्रेस ज़रूर करना। थैंक यू।